नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिलीगुड़ी में एक बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान लंबे समय पहले हुआ था तैयार। उस प्लान को अंजाम देने के लिए बिहार से 5 बदमाशों का दल सिलीगुड़ी के लिए हुआ था रवाना, लेकिन टास्क फोर्स की टीम ने गुप्त सूत्र के आधार पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के डीडी के एसपी राजन छेत्री के साथ मिलकर अभियान चलाया और बदमाशों के प्लान पर पानी फेरते हुए साजिश का पर्दाफाश कर दिया। टास्क फोर्स और डीडी द्वारा चलाए गए अभियान में एनजेपी से बिहार के 5 आरोपी 100 रुपए के 22 पीस जाली नोट और 2 संभवत 9 mm बंदूक और 17 राउंड कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, एक डोंगल और 3 ताला खोलने वाले रेंज बरामद किया है। गिरफ्तार 5 आरोपी के नाम शाहनवाज अंसारी मोटिया बिहार से, महेंद्र यादव कटिहार बिहार से, मोहम्मद अहमद पूर्णिया बिहार से, अजय कुमार चंपारण बिहार से, मिथुन ग्वाला राजगंज का है। इस बात की जानकारी डीडी के डीसीपी कुंवर भूषण सिंह ने पत्रकार सम्मेलन कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट। आज के जेटा प्रेस ब्रिफिंग होच्छे ওনার মেন উদ্দেশ্য আছে আপনাকে একটু ডিটেলস দেওয়ার জন্য, যেটা একটু গ্যাং ধরা গিয়েছে, একটু ইন্টারস্টেট গ্যাং আছে অ্যান্ড আমি ওনার জন্যই একটু ডিটেল আপনাকে দেব। গতকাল একটু ইনফরমেশন এসটিএফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কাছে ছিল কি একটা অর্গানাইজড গ্যাং আছে, বিহারের অর্গানাইজড গ্যাং আছে যেটা এখানে আসবে, একটু রবারি কমিট করবে। তো ওটা ইনফরমেশন যখনই আমার সিপি স্যার কাছে আসলো, ওটা আমার ডিডি টিমকে এবং লোকাল থানাকে ইনফর্ম করলেন। ওটা বললেন কি ভালোভাবে একটু টিম তৈরি করে দাও অ্যান্ড টেক এ ডিটেল অ্যাকশন अगेंस्ट দ্যাট ইনফরমেশন। যেটা ইনফরমেশন ছিল দ্যাট ওয়ান গ্যাং কম্প্রাইজিং অফ 2 to 5 persons, it was not clear to do how many persons were there, that they may commit robbery and they are planning to rob around 60 to 70 lakh rupees from a family members who are going to take it from one place to other place. So after getting that information, আমি আমার যেটা এসিপি ডিডি 2 আছেন রাজন ছেত্রী এবং সবাই লোকাল থানাকে আমি বললাম কি ভালো করে আপনি নাকা লাগিয়ে দাও অ্যান্ড নাকা লাগিয়ে দাও এবং সবাই পিসি পার্টিকে অ্যালার্ট করে রাখুন। তারপরে এসিপি ডিডি 2তে যে টিম ছিল 5টা লোককে ধরেছে, ওটাই ডিটেল আমি আপনাকে দেব। 5টা লোক যেটা আছে ওনার নাম আছে শাহনওয়াজ আনসারি, ওনার বাড়ি আছে চম্পাতিয়া ডিস্ট্রিক্ট বেতিয়া বিহার। সেকেন্ড যেটা আছে ওনার নাম আছে মিথুন গোয়ালা, ওনার বাড়ি আছে রাজগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট জলপাইগুড়ি। অ্যান্ড জন থার্ড লোক আছে ওনার নাম আছে মহেন্দ্র यादव, ওনার বাড়ি আছে কটিহার বিহার। फोर्थ যেটা আছে ওনার নাম আছে মোহাম্মদ আহমদ অ্যান্ড ওনার বাড়ি আছে পূর্ণিয়া বিহার। অ্যান্ড যে ফিফথ লোক আছে ওনার নাম আছে অজয় কুমার, ওনার বাড়ি আছে মোতিহারি বিহার। তো আফটার অ্যারেস্টিং দোজ পিপল সার্চ ওয়াজ কন্ডাক্টেড অ্যান্ড যেটা জিনিস পাওয়া গিয়েছে ওটা আছে 2টা মোটরসাইকেল পাওয়া গিয়েছে, 60টা মোবাইল ফোন ছিল এবং একটু ডোঙ্গল ছিল অ্যান্ড যেটা মেন জিনিস ছিল ওটা ছিল ফেক ইন্ডিয়ান কারেন্সি নোট ছিল, 22 কোয়ান্টিটি ছিল, ইচ অ্যামাউন্টিং 100 রুপিস। তারপরে একটা কেস স্টার্ট হয়েছে অ্যান্ড এবং যেটা লোক আছে ওনাকে কাল আগামীকালে কোর্টে প্রডিউস করা যাবে এবং পিসিতে নেওয়া যাবে। অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডিটেল কোয়েশ্চেন আমার एसीपी DD 2 রাজন ছেত্রী এখানে আছেন, ওটা আপনাকে ব্রিফিং দিয়ে দেবে। किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। पीएम मोदी ने दिए शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया नमन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल समेत अन्य प्रमुख नेताओं ने शनिवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर देश को शुभकामनाएं दी। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस अवसर पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जिनमें सीखने की ललक है और उनके संपूर्ण ब्रह्मांड शिक्षक है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए देशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देश में फिर से टूटा रिकॉर्ड। कोरोना वायरस के 86,432 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 1089 लोगों की हुई मौत।
देश में कोरोना वायरस का कहर फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शनिवार को देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के 86,432 नए मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के कारण 1089 लोगों की मौतें हुई। नए मरीज मिलने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल केसेस बढ़कर 40,23,179 हो गई है। हालांकि इनमें से 31,07,223 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं और फिलहाल देश में एक्टिव केसेस की संख्या 8,46,395 है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 84.48% हुई। पिछले 24 घंटे में 58 और लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से 3,305 और लोगों के ठीक होने के बाद शुक्रवार को स्वस्थ होने की दर बढ़कर 84.48% हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया कि इस बीमारी से 58 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,452 पहुंच चुकी है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोविड-19 के 2,978 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,74,659 हो गई है। इसके अनुसार राज्य में इस समय 23,654 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती आज रायगंज नगर पालिका की ओर से भव्य रूप से पालित की गई। आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आज उनके तस्वीर के सामने रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास सहित अन्य पार्षदों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। चेयरमैन संदीप विश्वास ने शिक्षाविद तरुण कुमार मुखर्जी की एक किताब का विमोचन भी किया। आज के पौरसभार पक्ष থেকে আমরা আজকে মহান শিক্ষক দিবসে শিক্ষক জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আমরা কয়েকটি কর্মসূচি রেখেছি। তারই মধ্যে একটি সকাল 9টায় দেবীনগর বাঘাযতীন পার্কে পৌরসভা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট জননেতা শিক্ষক সুব্রত রায়ের আবক্ষ মূর্তিতে আমরা প্রণাম জানালাম, শ্রদ্ধা জানালাম, তার স্মৃতিচারণা করলাম। এর মধ্যে দিয়ে আমরা এই শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে সকাল 10টায় আমরা সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রের দক্ষিণ দ্বারে অবস্থিত ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হয়ে একইভাবে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠান করব। दुनिया में अब तक 2.67 करोड़ लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस का शिकार। WHO ने कहा 2021 के बीच तक सभी देशों में पहुंच सकेगी वैक्सीन। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,67,75,048 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,88,84,515 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,78,150 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि 2021 के मध्य तक ही कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2021 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक दुनिया भर के देशों में वैक्सीन पहुंच सकती है। यह टाइमलाइन इस आधार पर तय की गई है कि दुनिया में जिन वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल चल रहा है वह इस साल के अंत तक पूरा नहीं होता दिख रहा है। ट्रायल पूरे होने के बाद ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकेगा। गरीबों को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने के लिए कालियागंज में एक ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया अपनी रोटी नामक कर्मसूची। देश में कोरोना वायरस का कहर अभी भी लगातार जारी है और इसके कारण पिछले 6 महीने से दिन प्रतिदिन काम कर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाले दैनिक मजदूरों और अन्य गरीब लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरिराम स्वरोगी चैरिटेबल ट्रस्ट और कालियागंज रानी सती मंदिर कमेटी की तरफ से अपनी रोटी नामक कर्मसूची की शुरुआत आज की गई है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराई जाएगी। आज कालियागंज स्टेट जोनल प्रांगण में इसका शुभारंभ हुआ। कालियागंज स्टेट जनरल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर प्रकाश राज ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर कालियागंज रानी सती मंदिर कमेटी के सभापति सुरेश शरफ, रुस्तम पोद्दार, सुदीप भट्टाचार्य और हरिराम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख उपस्थित थे। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, इसके लिए अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों तक कालियागंज की जनबाहुल इलाकों में लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। আপনি রুটি মানে এটা হরিরাম সরোগী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট থেকে আমরা এটা বানিয়েছি। আচ্ছা, বিভিন্ন গরিব অনাথ বাচ্চাদের জন্য যারা তারা দৈনন্দিন রুটি পায় সেই উদ্দেশ্যে এই সরোগী ট্রাস্ট
এটা টোটাল পদ্ধতি হচ্ছে এখানে অটোমেটিক মেশিনে আটাটা পেশা হয় আচ্ছা এবং তারপর তো তার পরিমাণ মতো লেচি কাটা হয়, অটোমেটিক মেশিন আছে, হিট হয়, সেকে ফুলে রুটি বেরোয়। এতে ম্যান পাওয়ার কম লাগে এবং অল্প সময় অনেক লোকের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারি রুটি, এবং সেটা টাইমলি আনলিমিটেড করা যায়। সারাদিন ধরে আমরা গঙ্গাসাগরও বিভিন্নভাবে আমরা খাইয়েছি, 1 মাস ধরে সেখানে অন্তত 5,000-7,000 লোককে আমরা পার ডে দিতে পেরেছি। এখন আপাতত আপনার এখানে পার ডে আমরা 1200 থেকে 1400 লোককে দিই। হ্যাঁ, এটা আপনার মোটামুটি 3 ঘন্টায় 1600 রুটি তৈরি হয়। আজকে এখানে দাদি রানীসতী সুরেশজির উদ্যোগে আমরা এখানে 14 দিনের জন্য এসেছি, বিভিন্ন জায়গায় ওনারা নিয়ে যাচ্ছেন। গতকাল আমরা গোশালায় প্রতিদিনই দিচ্ছি, গতকালও আমরা দিয়েছি রানীসতী মন্দিরে, আজকে এই হসপিটালে, আগামীকাল আরও নিশ্চয়ই ওনাদের কোনো প্রোগ্রাম আছে। এই গাড়ি পরিবেশনা 2 বছর হয়ে গেছে, আমি হয়তো কিছুদিন হয়েছে এসেছি লকডাউনের সময়, কিন্তু এই গাড়ি 2 বছর ধরে পরিষেবা দিচ্ছে। বিভিন্ন মানুষ, কলকাতার বিভিন্ন মানুষকে দিয়েছে, তার সঙ্গে গঙ্গাসাগর, শ্রাবণ মেলা। लेते ही थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय मानसून सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल, अध्यक्ष ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल विधानसभा के आगामी 2 दिवसीय मानसून सत्र के समय की कमी और कोरोना की स्थिति की वजह से कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बैनर्जी ने इस बात की जानकारी दी है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने बैंकों को कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों में छूट देते हुए शनिवार को काम करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि इससे पहले ये घोषणा की जा चुकी है कि राज्य में शैक्षिक संस्थान 20 सितंबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 7, 11 और 12 सितंबर को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर साधा निशाना, कहा क्षेत्रीय शांति के लिए आक्रामकता ठीक नहीं है। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और इसके समर्थकों की निंदा करता है। राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित
एससीओ क्षेत्र के लिए जरूरी है कि सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामकता का परिचय दिया जाए। इस बैठक में भारत और रूस के अलावा चीन के रक्षा मंत्री भी भाग ले रहे हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में ताजा झड़प की खबरों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की इस अहम बैठक में शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। चुनाव आयोग का ऐलान, 29 नवंबर से पहले पूरे हो जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। आयोग बिहार चुनाव के समय ही 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहले पूरा करना है। उसी समय के आसपास विभिन्न राज्यों की 64 विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। बता दें कि वर्तमान बिहार विधानसभा के कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई शौविक व मिरांडा को कोर्ट में पेश करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ड्रग्स मामले में किया गया गिरफ्तार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी आज रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि शौविक, मिरांडा, जैद और काइसन इब्राहिम को मेडिकल परीक्षण के लिए सायन अस्पताल लाया गया है। एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वांगखेड़े ने इसकी जानकारी दी है। इन दोनों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एनसीबी और केंद्रीय टीम ने रिया और सैमुअल के घर पर छापेमारी की थी। एनसीबी ने रिया को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। सुशांत की मौत मामले के तार ड्रग्स डीलरों से जुड़ने के बाद से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जल्द ही एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती एवं उसके परिवार से पूछताछ शुरू कर सकती है। यह आशंका शुक्रवार सुबह सच साबित हुई, जब 6:30 पर एनसीबी की 2 टीमों ने अलग अलग रिया चक्रवर्ती एवं मिरांडा के घरों पर छापा मारा। हिमाचल में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से 4 युवकों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक के बीच टक्कर में 7 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के संगला इलाके में हुई। शुक्रवार देर रात खरोगला में एक बोलेरो कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। तड़के सुबह एक बस और ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे बस में बैठे 7 मजदूरों की जान चली गई है। रायपुर के एएसपी अजय यादव ने इस बात की जानकारी दी। यह बस मजदूरों को उड़ीसा के गंजाम से गुजरात के सूरत लेकर जा रही थी। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा रायपुर के चेरी खेदी में हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बस दुर्घटना में मारे गए गजम निवासी 7 लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही मालदा में चलने लगेगी पैसेंजर ट्रेन। मालदा जिले में पैसेंजर ट्रेन चलने को पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही मालदा में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। फिलहाल मालदा जिले में 2 ट्रेन पदातिक एक्सप्रेस एवं ब्रह्मपुत्र मेल चलाई जा रही है। रेलवे मालदा जिले में पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को पूरी तरह तैयार है। बस राज्य सरकार हरी झंडी का इंतजार है। मालदा रेलवे डिवीजन के डीआरएम यतेंद्र कुमार ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने रेल बोर्ड के चेयरमैन को फिलहाल ट्रेनों का परिचालन बंद रखने का पत्र भेजा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मालदा जिले में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न इलाकों से लोग मालदा जिले में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का अनुरोध कर रहे हैं। हावड़ा जमालपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने के लिए नियमित रूप से जिले के विभिन्न इलाकों से लोगों के आवेदन रेलवे को मिल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही जिले में ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कोरोना महामारी में मालदा रेलवे डिवीजन को आर्थिक तौर पर व्यापक नुकसान पहुंचा है। फिलहाल केवल मालगाड़ी चलाई जा रही है। मालगाड़ियों की बुकिंग 24 घंटे जारी है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने के कारण रेलवे को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रतिदिन रेलवे को पैसेंजर ट्रेन से 34 लाख रुपए का कारोबार होता था। मेल चल रहा है डिब्रूगढ़ से दिल्ली 5955 05955 एंड 05956 एज ए स्पेशल ट्रेन।
जो यहाँ से पास कर रहा है। और दूसरा एक ट्रेन है पदातिक एक्सप्रेस अलीपुरद्वार से हावड़ा सियालदह तक जा रहा है डेली 2377 एंड 88। तो ये जिस दिन जो बंगाल के बंद हैं, जो बंद के दिन अनाउंस्ड हैं, उस दिन ये ट्रेन नहीं चल रहा है। उसके अलावा फर्दर और ट्रेन का डिमांड अभी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। हमारे यहाँ से जैसे गौर एक्सप्रेस है और भी 2-3 इम्पोर्टेंट ट्रेनें हावड़ा जमालपुर है, इनका डिमांड यहाँ के लोग मांग रहे हैं। तो जैसे ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोलेगा हम लोग रेडी हैं ट्रेन चलाने के लिए, तो हम लोग अपना उस समय ट्रेन का प्रचालन कर सकते हैं। ऐसा है ना कि हमारा तैयारी ये कोविड के पेंडेमिक के चलते स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिक्वेस्ट किया है, इवन हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को चिट्ठी लिखा था यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने बंगाल का, हाँ बंगाल के सिन्हा साहब ने, कि ये अभी बंगाल में स्थिति खराब है, यहाँ ट्रेनें उतना ना चलाया जाए और जो चल रहे हैं वो एक उसका रेस्ट्रिक्शन किया था कि एक जगह ही रुके जहाँ आपका कोविड को टैकल करने का अरेंजमेंट है। जैसे आपका जो ब्रह्मपुत्र मेल का फरक्का का स्टॉपेज हटा दिया है, एक स्टेट में एक जगह। झारखंड गवर्नमेंट ने भी अपना जो भड़रवा और इधर रुकता था केवल साहिबगंज में रखा हुआ है। बिहार का ऐसा नहीं है, उनके जहाँ स्टॉप पहले से थे वो चल रहा है। तो हम लोग तो जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो लोग पेंडेमिक उनका वो है, उस पर अपना कार्रवाई करते हैं। तो अभी हम लोगों को अगर आदेश मिलता है तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। सारे आदेश किस जगह से है? आदेश मतलब जो बंगाल 30 सितंबर तक तो रेल मंत्रालय सभी गाड़ी बंद की है। कुछ अगर स्पेशल ट्रेन जो चलाना है, जैसे बंगाल गवर्नमेंट ने अभी लिखा है कि मेमू और जो मेट्रो है वो 7 सितंबर से चलेगा, मतलब वहाँ कलकत्ता में। यहाँ के लिए भी अगर ये इन ट्रेनों के स्पेशल अगर ये देते हैं कि भाई रेलवे बोर्ड या हमारे जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता को भी लिखते हैं, तो उसका चलाने का आदेश होगा, हम लोग चला देंगे। तो मंत्रालय किया, हमको डायरेक्ट नहीं दिया है, हाँ। उसके थ्रू मना किया। अभी है ना पेंडेमिक जैसे ही कंट्रोल होता है, आई थिंक पेंडेमिक के चलते उन्होंने किया है। तो अभी जब सितंबर तक तो जो गाड़ी चलेगा स्पेशली चलेगा, उसके बाद जैसे रेल मंत्रालय का आदेश होता है हम लोग पूरी गाड़ी चलाएंगे। तो गाड़ी सारी सब खाली खड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।